as I told you, physical geography was largely conceptual. As we are moving towards now more and more information oriented part of our syllabus, so we need more revisions. ठीक है, जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है उसको बार बार रिविजन्स दो, ठीक है, तभी चीज़ें याद रहेगी एग्जाम के लिए. ऑल्सो नेक्स्ट संडे वी विल हैव अ टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट ऑन फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट. ठीक है ना, फिजिकल ज्योग्राफी पे हम टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट ऐसा होगा कि 50 MCQs हो गए और उसमें 5 आपको मेंस के क्वेश्चंस. फाइन ना. आई एम गिविंग यू 1 week फॉर रिवीजन. आई वॉज गोइंग टू हैव दिस टेस्ट दिस संडे ओनली, बट इंडिया फाइनल में गया है, फिर मूड नहीं होगा बच्चों का पढ़ने का. ठीक है, तो दैट्स व्हाई नेक्स्ट संडे. ओके, सो बी क्लियर अबाउट इट और उसको रिवीजन करना है. यस्टरडे वी कवर्ड द फिजिकल डिवीजन और फिजियोग्राफी of India. We started with that, and first division we have covered, that is Himalayan part or Himalayan mountains and northeastern hills. The second one, northern plains, North Indian plains. Okay, North Indian plains. So yesterday we learned about how they are formed, the structural aspect. They are basically the remnants of the ancient, or we can say that the old Tethys geosyncline, right? And at present, the rivers from Himalayan region and the peninsular region are draining this and bringing a lot of sediments. These sediments are deposited there. The thick layer of sediment has formed the fertile northern plains. Talking about the physiographic, we can say features. So yes, if we talk from the west to east length, अगर देखते हैं इसका तो it's about 3,200 kilometer. If we talk about the width, it ranges between 150 to 300 kilometer. Narrow है, right? If you talk about depth of sediments, 1,000 meter to 2,000 meter. So you can understand 2 kilometer deep there are only sediments. Northern plains. Average, ठीक है, 1,000 to 2,000. 1,000 रेंज बता रहे हैं हम उसमें, रेंज 1,000 to 2,000. At certain places, especially in the Bihar and West Bengal region, it reaches to 2,000. ठीक है, जैसे जैसे हम डिपोजिशनल एक्टिविटीज कहाँ ज्यादा होती है, नियर द माउथ ऑफ रिवर, तो वहां पे ज्यादा डेप्थ होगा ना, राइट. नाउ other features of North Indian plains, we can say it can be, we can say, divided into Bhabar, Tarai and alluvial plains. From north to south, this is the sequence. From north to south, this is the sequence. Bhabar, Tarai, alluvial plains. Alluvial plains are further divided as Bhangar and Khadar. Further divided as Bhangar and Khadar. So what are the features of these? Okay, these are the structural aspect, we can say how it looks like. So if you see from north to south, when the rivers, Himalayan rivers, are just entering into the plains region, there we have Bhabar. It is the narrow stretch of 8 to 10 kilometer. All along
foothills of Himalayas. Basically, I told you that when the river is just entering into the plains region, first of all it is deboarding the large boulders. मैंने बताया था ना गाड़ी का एग्जांपल देके, जब फास्ट स्पीड से गाड़ी जा रही है तो सबको लेके चलती है, बट स्पीड कम हो गई तो सबसे हेवी वालों को उतार देती है क्योंकि वो आगे नहीं जा सकती, राइट? So when it is just entering into the plains, its kinetic energy is reducing now, and that's why it will start the depositional activity. And the first, let's say, material to be deposited will be the heavier ones, large boulders, rocks. They are first deposited, and they form this bhabar layer. ठीक है, जो deposition कर रहा है वो, ठीक है, bhabar. So here you can see large boulders deposited, large boulders, heavy material, deposited by the rivers. See, most of the things I am writing on the board for this chapter, so will not have dictation. ठीक है, हम बहुत सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ और एनसीईआरटी को मैंने हाईलाइट करके भी दिया है आपको चैप्टर को, ठीक है, तो इट्स मोर देन सफिशिएंट. Large boulders are deposited here. Now, the uniqueness of this layer is that the streams disappear in this layer. How they disappear? Because when they are just entering into the plains and when they are depositing this huge amount of, large amount of, let's say, boulders, large size boulders, तो पानी को तो अभी उसका रास्ता ढूंढना होगा बड़े बड़े पत्थर के बीच में से, ठीक है. सो वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग बाय फाइंडिंग द वे आउट ऑफ दोज बोल्डर्स, एंड इफ यू सी फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेस यू विल सी ओनली बोल्डर्स एंड नॉट वाटर. ठीक है, अगर देखते हैं दूर से तो वहां पे बोल्डर्स दिखते हैं, बट उसके बीच में से पानी भी बह रहा है, वो दिखाई नहीं देता है. दैट्स व्हाई वी से दैट द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस रीजन. डिसअपियर मतलब एक्चुअल में डिसअपियर हो रहे क्या, वहां पे जाएंगे तो पानी दिखेगा ही, ठीक है, बट दूर से देखता है, जैसे रिवर फ्लो करते हुए दिखती है ना दूर से भी, तो यहां पे वो रिवर दिखती नहीं है. व्हाई? बिकॉज देयर आर लार्ज बोल्डर्स, हेवी मटेरियल इज डिपॉजिटेड देयर. Okay, now as the stream is moving further, next layer, Tarai. Okay, now this Tarai region is basically south of Bhabar. Okay, now in this layer streams reappear. स्ट्रीम्स रीअपियर क्योंकि वो सारा बोल्डर्स वो डिपॉजिट हो चुका अभी पीछे, वहां से वो अभी सरफेस पे दिखेगी स्ट्रीम्स, ठीक है. सो रीअपियर ऑन द सरफेस, एंड दीज आर बेसिकली नाउ द मार्शी लैंड्स, स्वैम्प्स. दे फॉर्म मार्शी लैंड स्वैम्प्स as the streams are reappearing on the surface. So here they are now mixed with soil. वहां पे जो डिपॉजिट्स है, सॉइल है, वहां पे पानी मिक्स हो रहा है और वो स्वैम्प्स की तरह दिखाई दे रहा है. दलदल वाला प्रदेश जो बोलते हैं ना, वो होता है तराई, दलदल वाला प्रदेश, ठीक है. सो दिस रीजन इज ऑल्सो हैविंग रिच ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, dense vegetation is there, and yes, of course, biodiversity in terms of fauna. So you can see most of this tiger reserve examples: Pilibhit Tiger Reserve, Rajaji Tiger Reserve, or Valmiki Tiger Reserve in Bihar. All these are in Tarai region. ठीक है, ये टाइगर रिजर्व जो है, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स यहां वाले, ठीक है.
Okay, now beyond Tarai, we have alluvial plains. Alluvial plains. Now, alluvial plains are basically formed due to deposition of alluvium brought by rivers. Himalayan rivers especially. Alluvium is the fine deposits. Alluvium is the fine deposits. Compared to, we can say, sand or boulders. This is basically largely the silt type of thing. Alluvium जो होता है वो silt type का होता है. हमने देखा था वो size के हिसाब से. ठीक है, boulders are greater than, we can say, sand is greater than, we can say, silt, then clay, right? So this is the finer deposits and they are deposited in the plains. They are forming alluvial plains now. तो हमने बोला कि heavier material is first deposited. Now the finer material is subsequently deposited throughout its course. Okay, so alluvial plains, they can be, they are fertile plains. Okay, fertile plains for, we can say, agriculture purpose. Agriculture purpose, it is highly productive region. Why we are saying highly productive region? Because these plains are, every year the water is, let's say, bringing new sediments and they are deposited. So the river soil is itself rejuvenated every year by the rivers. नए sediments आएंगे, नए nutrients आएंगे. Again, so new nutrients are made available. Now further it is divided as Bhangar, Khadar. Now if you take the example of river, so if this is the river, let's say like this, right? So what happens is, this river is depositing from both sides. The deposits which are deposited very near to the bank of the river, ठीक है, नजदीक में जो डिपॉजिट हो रहा है ना, उसको बोला जाता है खादर. नजदीक में जो होता है वो खादर होता है. ठीक है, और जो दूर पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, जो दूर डिपॉजिट हो रहा है वो सेडिमेंट्स को या फिर डिपॉजिट्स को बोला जाता है भांगर. अब ये भांगर जो होता है, बेसिकली दे आर द ओल्ड alluvium. It is called as old alluvium, and khadar is called as new alluvium. New alluvium. That means almost every year these rivers overflow its banks. Almost every year these rivers overflow its bank and deposit the new alluvium. So khadar is that region. Every year the khadar receives new alluvium. So they are more fertile. Now in rare cases, or we can say after 3-4 years, there can be flood like situation and the overflowing of the river can reach up to these areas. Overflowing of rivers can reach up to these areas. Now the deposits can be deposited here. तो ये 3-4 साल बाद ये पुराने हो जाएंगे ना. हर साल तो यहाँ पे आ रहा है ना नया, बट ये तो पुराने हैं, इसलिए उसको भांगर, ओल्ड एलुवियम. अब नाम याद रखना है भंगार की तरह. भंगार क्या होता है? पुराना होता है. तो इस तरीके से उसको याद रखना है. भंगार इज द ओल्डर वन. तो ओल्डर एलुवियम, ओल्डर है तो वो दूर रहेगा. ठीक है. एंड न्यूअर खादर. ठीक है, याद रहेगा ये तीनों, भाबर, तराई, भांगर, खाद, इस तरीके से. ठीक है, फाइन. नाउ
सर ये डायग्राम में इसका वर्टिकल व्यू है कि मतलब जैसे नॉर्थ टू साउथ व्यू है कि किस तरह का व्यू है? कैसे भी हो सकता है। अगर ये रिवर ऐसे आ रही है तो दोनों साइड पे डिपॉजिट करेगी, रिवर ऐसे जब जा रही है तो ये दोनों साइड पे डिपॉजिट करेगी। बट जनरली अगर रिवर ऐसे जा रही है ना तो इस साइड पे ज्यादा डिपॉजिट करेगी, है ना? समझ में आ रहा है? अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, समझो हिमालय से आके ऐसे जाती है ना जनरली रिवर जो है वो, यहाँ पे तो ये दोनों साइड पे करती है, बट यहाँ पे ये टर्न मारने के बाद ज्यादातर इस साइड में डिपॉजिट करेगी एज कंपेयर टू दिस वन। नेचुरल स्लोप है ना, नेचुरल स्लोप इस साइड पे ज्यादा है, ठीक है। सर फिर ओल्डर और मतलब न्यू का वो डिफरेंस क्यों क्रिएट करा आपने? ओल्डर और न्यू का इसलिए किया गया है क्योंकि वो फार्दर डिस्टेंस पे है एंड इट इज नॉट डिपॉजिटेड एवरी ईयर, सो द सेडिमेंट्स फाउंड हियर, ये जो डिपोजिशंस है यहाँ पे ये पुराने हैं, ठीक है। अच्छा ये डायग्राम में कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, समझ गया। ठीक है, ये जो है ये पुराने हैं, यहाँ पे बैंक पे, रिवर के बैंक के नजदीक में जो डिपॉजिट्स होंगे, एवरी ईयर रिवर्स ब्रिंग्स न्यू डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिट्स हियर, ठीक है। जो सेडिमेंट्स आते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं हर साल, तो इसलिए उसको न्यू एल्यूवियम बोला गया, ठीक है। ओके, नाउ alluvial plains further. yes, if you talk about the structural aspect, plains में भी divisions है जो NCERT में ठीक से नहीं दिया है, but let me talk about this. Okay, divisions, but these are like first of all we can talk about Indus plains, ठीक है। तो इंडस प्लेन्स कौन से हैं? इंडस रिवर के, इन इंडिया वी हैव पंजाब हरियाणा प्लेन्स, ठीक है। व्हाट वी हैव? पंजाब हरियाणा प्लेन्स, which region is covered? राइट, तो यहां पर क्या है खास करके, कौन सा रीजन हम बोलते हैं इंडस के यहां पर? इट इज मेंशन इन एनसीईआरटी, दोआब, उधर भी है इधर भी होते हैं, ठीक है। देखो, दो नदी के बीच के एरिया को दो अब बोलते हैं, दो मतलब टू, अब मीन्स वाटर्स, ठीक है। अब ये खास करके पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी यहाँ पर फेमस है नाम, ठीक है, रीजनल नेम जिसको हम बोलते हैं, दो अब्स, दो अब्स। ओके, सो ये प्लेन्स का पार्ट है। यहाँ के कौन से रिवर्स है यहाँ पर? रावी, सतलज एंड वी कैन से बियास, ये इसके प्लेन्स है यहाँ पर, ठीक है, पंजाब हरियाणा। एंड वी नो दैट इट इज हाईली लेट्स से एडवांस इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, this region. Why? Due to intensive irrigation, ठीक है, through canals, canals very important, dams are built, so canals are there. Second, we can say that upper Ganga plains, now we can call this as western UP part, upper Ganga plains, ठीक है, गंगा यमुना दोआब जिसको बोलते हैं, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, upper reaches of Ganga river, so that region again it is here, canal irrigation is very famous, canal irrigation. Third one is we can say middle Ganga and lower Ganga plains, ठीक है। मिडिल गंगा प्लेन्स को हम बोलते हैं कि
ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, एंड लोअर गंगा वेस्ट बंगाल, this region. In terms of agriculture, you know that Indus plains and upper Ganga plains, यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है, rice, wheat cultivation is there, maize cultivation is there, sugar cane is very prominent, especially in this region, upper Ganga plains. Sugar cane is very prominent here. Then even in this region they are growing cotton also, Punjab, Haryana, है ना. So you should be knowing what kind of crops they are growing there. तो हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ेंगे फिर से एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो है. Now this region, rice cultivation prominently in Bihar and West Bengal, rice is the prominent crop. Okay, West Bengal there are three let's say seasons of crops in 1 year. हर एक सीजन में राइस वैरायटी ग्रो की जा सकती है वेस्ट बंगाल में. ठीक है, वो एनसीईआरटी में उन्होंने मेंशन किया हुआ है वहां पर. एंड देन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, आसाम, ब्रह्मपुत्र प्लेन, आसाम. So uniqueness of this Assam plains. So here Brahmaputra is having highly braided channel. Highly braided channel. The river water is continuously changing its course. So braided channel बोलते हैं हम उसको. And there are many riverine islands. Riverine islands formed. For example, largest riverine island in the world, Majoli Island. Majoli Island, Assam. Yes. Riverine island. ठीक है, Majoli Island, very famous. And yes, of course, Brahmaputra plains are, you know, these are flood prone. Every year Brahmaputra, annual floods, it is characterized by annual floods, हम बोल सकते हैं. And these floods are important, beneficial for flora and fauna of this region. It is beneficial for flora and fauna of this region. Okay, the fauna of this region, animals, they are basically adapted to this particular ecosystem. ठीक है, तो ये यूनिकनेस है यहाँ का खास नॉर्दर्न प्लेन्स. अंडरस्टूड? ठीक है. ब्रह्मपुत्र meander form नहीं करता है क्या? नहीं करता है meanders. The reason is that rather it forms the braided channel. क्योंकि ये फ्लो देखना कैसे करती है, आप अगर देखते हैं कि साउथ ऑफ हिमालयस एंड देन देयर आर मेघालयन हिल्स आल्सो देयर, तो उसका चैनल जो है उसके बीच में ही है. तो ये कहाँ मियांडर करेगा, उसको स्कोप नहीं है मियांडर करने का, है ना. बिग प्लेन्स नहीं है ऐसे जहां पे वो उसको स्कोप है मियांडर करने का. ठीक है, तो रादर देन दैट द वाटर्स दे आर फ्लोइंग विद इन दैट चैनल लाइक दिस. मियांडरिंग ही एक तरीके का, बट विद इन चैनल. उसका चैनल ही इतना बड़ा है वो रिवर का. व्हाई? बिकॉज द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज ड्यूरिंग द मॉनसून टाइम पीरियड. It is the largest river of India. Longest river गंगा है, but largest river क्या है? ब्रह्मपुत्र, because the amount of water flowing through its channel. ठीक है, तो जो ब्रेडेड चैनल है वो कैसे और क्यों, मतलब कैसे और क्या है, जैसे उसका एग्जैक्ट मीनिंग देखो, समझो अभी ये रिवर अरुणाचल प्रदेश से ऐसे आ रही है, समझो. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एरिया बढ़ रहा है इस तरीके से, समझो ये आसाम से आ रही है ऐसे नीचे. ठीक है, या फिर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, सीधा दिखेगा इस तरीके से. ठीक है, अब ये रिवर जब यहाँ से आ रही है तो ये छोटी रिवर है, सडनली अब ये प्लेन्स रीजन में आती है
ठीक है, अब प्लेन्स रीजन में जब आती है तब इसका चैनल तो बड़ा है ना, बड़ा क्यों हुआ है? बिकॉज बिटवीन जून टू सितंबर मंथ द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू दिस चैनल इज ह्यूज, तो ये पूरा भर गया है। उस टाइम पे ये पूरा चैनल ही भर रहा है, तब वो ब्रेडेड चैनल नहीं दिखता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग एट इट्स फुल, ये पूरा चैनल भर गया है, तब ये ब्रेडेड नहीं दिखता है, तब ये फुल दिखता है। बट समर में जब अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कम हो जाता है तो ये इसको स्कोप है फिर अभी ये ऐसा जाने का, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स डिपॉजिटेड होते हैं सभी तरफ, बीच बीच में ऐसे, उसके बीच में से वो जगह निकाल के पानी जाता है, अलग अलग स्ट्रीम्स जो है उसी चैनल से जाती है, उसको ब्रेडेड चैनल बोलते हैं। ठीक है, इज इट फाइन? ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स। नेक्स्ट इज peninsular plateau. Okay, so we know that peninsular plateau is irregular shaped, or we can say irregular triangle shaped. ठीक है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल मतलब इन्वर्टेड ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं। स्टेबल लैंडमास, all right. Peninsular plateau, so how it is formed and all this structural aspect we learn about it. Now if you talk about its extent, ठीक है, एक्सटेंट अगर देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट में बेस ऑफ डेजर्ट, ओके, बेस ऑफ इंडियन डेजर्ट, नॉर्थ ईस्ट में वी कैन से शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेटू, and we know that till south Cardamom Hills, southern tip we can say. These are the extent. It can be divided as divided into three parts further, as we can say Deccan Plateau, thereafter Central Highlands, and we can say मेघालयन प्लेटू। यहाँ पे अब शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग, yes. So first we'll talk about the Deccan Plateau. So south of Vindhyas, yeah, south of Narmada, simply this is called Deccan Plateau. ठीक है, जो सातपुड़ा रेंज है that is the boundary, और Vindhyas are the boundaries. ठीक है, उसके नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड्स हम बोलेंगे, उसके नॉर्थ में जो होगा वो सेंट्रल हाईलैंड्स है। तो साउथ ऑफ विंध्यास, साउथ ऑफ नर्मदा, सिंपली इट इज डेक्कन प्लेटू। नाउ द मेजर फीचर वी नो दैट इट इज द डेक्कन ट्रैप्स, Deccan traps along the western margins, and these traps have formed the black soil here, formation of black soil, withering of basaltic rock, formation of black soil.
Then there are Western Ghats along the western margins and Eastern Ghats along the eastern margins. Along the eastern margins. Western Ghats, we know they are locally known as with different names. In Maharashtra, they are known as Sahyadris. In Maharashtra, they are known as Sahyadri. In Karnataka, Goa and Karnataka, they are known as कर्नाटका में हम बोल सकते हैं एंड तमिलनाडु दे आर नोन एज Nilgiris. Thereafter in Kerala they are known as Annamalai and Cardamom Hills. So different names in different states, but it is a continuous mountain range. Western Ghats. Annamalai, highest peak of Deccan Plateau, or we can say that outside the Himalayas, the highest peak on peninsular block, where it is located? अन्नामलाई में क्या नाम है? Anaimudi, highest peak. Second highest is in Nilgiri, Doda Betta. Second highest is in Nilgiri, Doda Betta. ठीक है? Peak we are talking. Highest peak is Anaimudi and second highest is Doda Betta. Eastern Ghats are basically the relict mountains or relict hills. They are severely eroded, dissected by the rivers, and they are also local hills. Locally they are having different names. So you can see in the map. Open karo atlas. देखो ईस्टर्न घाट्स में कौन से नॉर्थ टू साउथ देखो, नल्लामल्ला हिल्स, जावड़ी हिल्स, कौन से है? हाँ, शेवराय, नल्लामल्ला, और देखो नॉर्थ से साउथ में देखते हैं, ठीक है, नल्लामल्ला है, वेल्लीकोंडा है, ठीक है, पालकोंडा रेंज इज देयर, वेल्लीकोंडा पालकोंडा रेंज है, सेचाचलम हिल्स है, जावड़ी हिल्स है, शेवरा हिल्स है, पंचमलाई है, ठीक है, सिरुमलाई है, ये सब ईस्टर्न घाट्स के पार्ट है, ठीक है. So these are highly dissected. We can see that the rivers are flowing between them. Sirumalai.
नहीं, शेवरॉय तक ही याद रखिए, शेवरॉय तक ही ईस्टर्न घाट्स का पार्ट बोलेंगे हम, नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो है वेस्टर्न घाट्स का एक्सटेंशन है नीचे नीलगिरीज के बाद। नीलगिरीज में ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं एक दूसरे को। नीलगिरी माउंटेन्स दिख रहे हैं, नीलगिरी हिल्स, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट्स देयर, ऐसा हम बोलते हैं। उसके नीचे का अलग है, उसके नीचे का एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स है। ओके, वो मैपिंग सेक्शन में हम अलग से करेंगे सारा। डोडा बेटा कर्नाटका में है, देखो ठीक है। नाउ सेकंड वन, सेंट्रल हाईलैंड्स। Central Highlands. Okay, these are basically relic mountains. Of Vindhyas, north of Vindhyas, relic mountains. Okay, so this region has gone through metamorphosis. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं, दिखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिवर्स, बिकॉज रिवर्स का बहुत ज्यादा है, हम देखेंगे मेजर रिवर्स पेनिनसुलर रीजन के ड्रेनेज पैटर्न में, नेक्स्ट चैप्टर वही है। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक्स, फॉर एग्जांपल मार्बल फॉर्मेशंस ऑफ जबलपुर, नर्मदा वैली, एग्जाम्पल आई एम गिविंग, ठीक है, एमपी में। देन देर आर मेनी स्मॉल पैटलैंड्स within this highlands. Small patlands are formed of, or we can say small plateaus. Patlands भी बोलते हैं उसको, plateaus भी बोलते हैं, within these highlands. For example, हजारीबाग plateau, पलामू plateau, रांची plateau. पैटलैंड्स क्या होता है, इस तरीके से टोपोग्राफी होती है। टेबल लैंड की तरह दिखाई देता है, ऐसे पैटलैंड्स बोलते हैं, एलिवेटेड पार्ट्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे, तो प्लेटू की तरह दिखता है, आइसोलेटेड एक प्लेटू है, ये प्लेटू ऐसे था, उसके बीच में से रिवर्स फ्लो कर रही है। मेवार प्लेटू, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स। ऑन दिस साइड ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, ईस्टर्न साइड ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स, सो देयर वी हैव इन वेस्ट बंगाल राजमहल हिल्स, यू कैन लोकेट दैट इन वेस्ट बंगाल, राजमहल हिल्स, है ना। उसके बाद जो है आपको दिखाई देगा तीसरा पार्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न वाला, मेघालय, ठीक है। तो ये जो है, दिस बेसिकली इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर रीजन, इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम पेनिनसुलर ब्लॉक due to formation of Malda fault. Look at Malda,
मालदा फॉल्ट वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल या आसाम के रीजन में आपको मालदा दिखेगा लोकेशन। पॉलिटिकल मैप में भी देख सकते हैं आप। है ना वेस्ट बंगाल में। फराक्का के ऊपर देखो, वहां पे फराक्का हमने लोकेट किया था वेस्ट बंगाल में, वहां पे मालदा। सो व्हाट हैज हैपेंड हियर? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट अंडर यूरेशियन प्लेट, the corner of this peninsular block has broken. Simply remember like this, the corner, the triangular piece is moving like this, तो वो ये कॉर्नर जो है वो सब टूट गया है, उसके बीच में गैप पड़ गया है, उसको बोलते हैं मालदा गैप। एंड द रिवर स्टार्टेड ड्रेनिंग फ्रॉम दिस गैप। ठीक है, जब हिमालयस तैयार हो रहे थे तभी ये हुआ है। इन ड्रेनेज पैटर्न, इन इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस, how Brahmaputra and Ganga started flowing like this through that Malda gap. वहां से ही जा रहे हैं ना ब्रह्मपुत्र और गंगा, वो जो गैप तैयार हुआ है। मेघालय और उस रीजन के बीच में सारा प्लेन्स है देखो, और ऊपर से सारे रिवर्स जो आ रहे हैं वो वहां से ही नीचे की तरफ जा रहे हैं, ओशन की तरफ। In drainage pattern, I will explain this in detail, how this drainage system has evolved, Himalayan drainage system. But remember that it is due to the subduction of Indian plate under Eurasian plate. The corner, this part, this region got separated due to formation of Malda fault या Malda gap जिसको बोलते हैं। नहीं, वो वैसे ही था। ठीक है, वो रीजन जैसे राजमहल हिल्स है, राजमहल हिल्स है ना मेन प्लेट्यू पे, वैसे ही मेघालय के हिल्स थे पहले से ही। ठीक है, बट दैट रीजन गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन ब्लॉक, पेनिनसुलर ब्लॉक। ठीक है, उतना ही टुकड़ा उधर चिपक गया है, वो समझो वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट नहीं है, वो हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, ओके, राइट, मालदा फॉल्ट। हाँ, so what are the regions covered here? Sikkim, sorry, not Sikkim, Shillong Plateau and कार्बी एंगलोंग। लोकेट करो, ये आसाम में है, कार्बी एंगलोंग। दिख रहा है क्या इसमें? लोअर में, इधर मेघालय के ईस्टर्न साइड में जो है एरिया, मेघालय के ईस्टर्न साइड का जो एरिया है दैट इज कार्बी एंगलोंग। शिलोंग के ईस्टर्न साइड में। लिखा नहीं है इन्होंने। हाँ, वो मिकिर हिल्स और रेंगमा हिल्स है ना, आइसोलेटेड। हाँ, आई गेस वही होगा, मेरे ख्याल से तो वही होगा। मैं एक चेक करता हूँ, बताता हूँ आपको। ठीक है, now Meghalaya or this particular Shillong region, you can see that it is further divided into 3 hill ranges. कौन से है ये? Depending on the people, the tribal people, ethnic communities inhabiting those hills, Garo, Khasi, Jaintia, from west to east. Sequence में याद रखना है, from west to east.
Garo Khasi Jaintia Hills. Okay. Another unique feature is that मौसिन राम क्या है यहां पर? वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस. वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस. 1100 to 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल इन 1 ईयर. चेरापूंजी, मौसिन राम. ठीक है, तो यहां पर जो है बेयर रॉकी सरफेस होता है. इतनी बारिश हो रही है तो बहुत सारा वेजिटेशन होना चाहिए ना. क्यों ऐसा होता है? बेयर रॉकी सरफेस. Despite of this huge amount of rainfall, there is no vegetation. Vegetation is, let's say, cover is not there. हाँ, वो सॉइल फॉर्मेशन ही होने नहीं देता है पानी. जितना भी विदरिंग हो रहा है या हो रहा है वो सब लेके जाता है साथ में, इसके पानी के साथ में. वहाँ पे ऐसा था कि ये यहाँ मान लीजिए वो आपका बोल रहे हैं ना, यहाँ पे पूरा ऊपर में है तो यहाँ पे बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, रॉकी रॉकी और मतलब सैंड टाइप में दिख रहा था. फिर जैसे ही ना फॉल है ना वैली टाइप का, मतलब आप उस प्लेस पे खड़े होंगे ना तो आपको जस्ट दो कदम इधर करेंगे तो आपको बहुत गर्मी गर्मी सब फील होगा, गर्म होगा, और थोड़ा सा उधर जाएंगे जैसे फॉल्स होगा और वहाँ पे ना बहुत ठंडा ठंडा सा लगेगा. मतलब मुझे उस जगह का उस नेशनल पार्क का याद नहीं आ रहा है, पर बहुत सुंदर लगे. इधर पूरा आपको डेजर्ट वाली फीलिंग आएगी और जब वहाँ पे ऐसे आपको पूरा से पानी से नहर. तो यू विजिटेड दैट प्लेस? I stayed there in Shillong. Yes, of course, these are very beautiful places. ठीक है, मेघालय में बहुत ही अच्छा घूमने के लिए भी है. वहाँ पे कई सारे ऐसे प्लेसेस है, जैसे रिवर्स है. मेघालय किस चीज के लिए फेमस है? लिविंग रूट्स. लिविंग रूट्स ब्रिज है ना, वन इम्पोर्टेंट. देन सेकंड, वाटरफॉल्स तो ठीक है सभी तरफ मिलते हैं. वहां पे एक दो ऐसे रिवर्स है, नहीं वहां पे एक दो ऐसे रिवर्स है जिसका पानी एकदम ही ट्रांसपेरेंट होता है. बांग्लादेश के बॉर्डर पे डाउकी नहीं सुन रहे? हाँ. कौन सी रिवर? डाउकी. अरे द प्लेस इज डाउकी. हाँ, मैं रिवर का नाम भूल रहा हूँ. यू से नाम है उसका. उमंगोट. उमंगोट, वेरी गुड. ठीक है, तो ये खास करके इसी के लिए फेमस है. हाँ, ये देखिए, ये है ना, ट्रांसपेरेंट है ना ये, इतना. हाँ हाँ, तो ह्यूमन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ गंदा करेगा. There is also one cleanest village there. Yes, India's cleanest village. yes, very good. So the cleanest, world's cleanest village, ऐसे कुछ villages का टैग मिला हुआ है मेघालय के. I'm again forgetting the names. ये करंट अफेयर्स में पढ़ाया था मैंने. कुछ ऐसे ही नाम है एम से. मुझे इनिशियल्स याद रहते हैं, जैसे ये उमंगोट मुझे यू याद रहता. They have kind of unique feature of storing and all water and all. Rainwater. यस. और एक चीज के लिए फेमस है यहाँ पर, केव्स है, लाइमस्टोन्स वाला जो हमने पढ़ा था. ग्राउंड वाटर का टोपोग्राफी किसको बोलते हैं हम? कास्ट टोपोग्राफी. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कास्ट टोपोग्राफी इज इन मेघालय. देखा है? ठीक है, एशियाज लॉन्गेस्ट केव इज लोकेटेड इन मेघालय. हाँ, तो जमीन के अंदर है ना वो तो. ठीक है, तो यस ऑफ कोर्स, इफ यू वांट टू विजिट
इंडिया में इतने प्लेसेस है, लोग बाहर घूमते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मेघालयन प्लेटू, गारो खासी जयंतिया, एथनिक लेट्स से डाइवर्सिटी इज देयर। फाइन, चलिए ये हो गया आपका पेनिनसुलर प्लेटू। नाउ द नेक्स्ट इज फोर्थ वन, क्या आता है? कोस्टल प्लेन्स। नहीं, उससे पहले डेजर्ट देख लेते हैं। कहां पे लोकेटेड है ये? हाउ दिस डेजर्ट इज फॉर्म? Why this desert is formed at that place only? Don't tell me कि वहां रेनफॉल नहीं होता है। बिल्कुल रेनफॉल नहीं होता है तभी डेजर्ट होगा, बट क्यों नहीं होता है? Increase in sea level due to upliftment of plains. पिन पॉइंटेड रीजंस बताओ। इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल मॉनसून के वजह से होता है। सर एक तो रीजन ये है कि जो अरावलीज है वो ऐसे, तो उसकी वजह से मानसून वो पहुंच नहीं पाता वेस्टर्न मानसून, और ईस्टर्न साइड से जो मानसून जाता है वो बेसिकली वहां तक रीच करते करते पहले ही उससे खत्म हो जाता है। सेकंड वाला सही है। सर वेस्ट वाला है क्या कि जैसे ये अरावली जैसे नॉर्थ वेस्ट मींस इस डायरेक्शन में समथिंग नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से जब ये पैरेलल रन करते हैं ना, तो उनकी वजह से शायद रेनफॉल उस रीजन में होता नहीं। यस, वेरी गुड। तो दोनों सही है अभी। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अभी। बीच बीच में मैप निकालते रहना चाहिए, आदत रहनी चाहिए मैप ड्रॉ करने की। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रीजन है आपका सारा डेजर्ट रीजन है। ठीक है, तो बेसिकली अरावलीज आर स्टैंडिंग लाइक दिस। ओके, दे आर लाइक दिस Aravallis. Now see here, pay attention. When the monsoon winds are coming like this, Bay of Bengal branch is moving like this, and Arabian Sea branch is further divided into two branches. एक branch इस तरीके से जा रही है, it is coming onshore on the western Ghats. One branch is moving ahead like this. But look at the direction of this branch, it is moving parallel to Aravallis, and that's why it is not yielding rainfall, as there is no condensation and precipitation or any kind of orographic rainfall, क्योंकि वो उसको पैरेलल जा रही है। ओरोग्राफिक रेनफॉल ही नहीं होगा। हमने पढ़ा था ओरोग्राफिक रेनफॉल वो यहां हो रहा है, यहां वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, या यहां हो रहा है मेघालयन हिल्स के। ओके, सो हियर whatever the moisture they are bringing, that is carried onwards to northwestern part of India, but it is not deposited here because it is dry region already. Warmer temperatures are there, and because of that what happens is there is low relative humidity, so there are less chances of condensation and precipitation. Okay, so that moisture is carried till Delhi, वो आगे लेके जाते हैं वो मॉइस्चर जो भी होगा वो, तो वहां पे नहीं देगा मॉइस्चर वो। ठीक है, नाउ दिस ब्रांच इज मूविंग लाइक दिस। Puruvaya, this year's question, along the foothills of Himalayas. Now when it is moving like this, it is giving lot of rainfall as it comes onshore, and ये rainfall धीरे धीरे कम होता जाता है, दिल्ली तक सब खत्म हो जाता है। यहाँ पे अभी अरावलीज आ गए, तो अरावलीज की इस साइड में थोड़ा बहुत रेनफॉल गिरेगा। कौन से? ईस्टर्न साइड में। वेस्टर्न साइड में फिर से वो ड्राई होके जाएगी भी तो। So rainfall from both branches is not there. ठीक है, and that's why, and this conditions persisted for thousands of years.
This condition persisted for thousands of years, and that's why drier conditions है तो क्या होगा? Wind is the dominant erosional factor, geomorphic agent. Wind erosion is prominent there now, and that's why you can see formation of sand dunes, formation of mushroom rocks. We learned about that. Barchans, different kinds of sand dunes. तो ये हो गया यहाँ पे ये वेस्टर्न साइड ऑफ अरावलीज. ठीक है, कुछ फीचर्स उसके, इसको दूसरा भी नाम है मरुस्थली. इंडियन डेजर्ट को मरुस्थली बोलते हैं. ठीक है सर सर जब मॉनसून विंड्स वहां से पास कर रहे हैं, मतलब अरावली के ईस्ट से राजस्थान के ऊपर से जहाँ पे डेजर्ट है, तो आप कह रहे हैं कि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो उस वजह से मॉनसून विंड्स का रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाता है और वो वहां पे रेनफॉल नहीं कर पाते. बट जब कश्मीर तक पहुंचते हैं तो वहां पे फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल या किसी वजह से हो जाता है. सर तो नॉर्थ ईस्ट बिहार भी तो मतलब बहुत गर्म रहता होगा ना, बिहार और यूपी वगैरह, तो वहां पे फिर कैसे रेनफॉल हो जा रहा है? देखो मतलब कंपैरेटिवली क्या होता है ना कि यहाँ पे टेम्परेचर्स काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली. ठीक है, जो लो प्रेशर लैंड पे बना था मई और जून में, वो लो प्रेशर यही बनता है पेशावर इस रीजन में पाकिस्तान के. तो ये डेजर्ट रीजन जो है हमारा उस रीजन के नजदीक में है, वहां पे ज्यादा कंपैरेटिवली वार्मर टेम्परेचर्स होता है एज कंपेयर टू दिस पार्ट. सेकेंड थिंग, यहां पर ऑलरेडी रिवर्स है, वाटर है, लेक्स है, तो ऑलरेडी देयर इज इंक्रीज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मेड अवेलेबल थ्रू इवेपोरेशन ऑल्सो, सो दैट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीचेस टू 100%. ठीक है, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं. ओके, कंडेंसेशन होना, देन अगेन फुटहिल्स, हिमालयस के फुटहिल्स है ना वहां पर, तो दीज विंड्स विल ट्राई टू राइज अलोंग द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयस. ठीक है, वो कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, वहीं प्रेसिपिटेशन देंगे. हाँ, ओके. सो डेजर्ट फॉर्मेशन, so here different mushroom rocks, barchans, shifting sand dunes, can be found here. अगर नेचुरल स्लोप की बात करते हैं, यहां पर आपको स्लोप, नेचुरल स्लोप क्या है? सेंट्रल हाईलैंड्स का नॉर्थ साइड में है. पेनिनसुलर प्लेटू का ही ओवरऑल नेचुरल स्लोप किस तरफ है? वेस्ट टू ईस्ट है ना, ऐसा टिल्टेड है. अब ये ऐसे भी टिल्टेड नहीं है, वो कैसा टिल्टेड है? ऐसा है, देखो, ऐसा नहीं है, ऐसा है. मतलब फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, हाउ इट इज टिल्टेड? फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन में. एंड दैट्स व्हाई ऑल रिवर्स फ्लो लाइक दिस. कौन से रिवर है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी. ये इसका फ्लो कैसा है? नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट. बेसिकली दे आर फ्लोइंग बिकॉज ऑफ दैट स्लोप ओनली इन दैट डायरेक्शन. सो हियर दिस स्लोप, डेजर्ट का स्लोप जो है दो पार्ट में है. नॉर्दर्न पार्ट जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ स्लोप होता है. मतलब कहां पर? सिंध की तरफ, पाकिस्तान का जो सिंध पार्ट है ना, उस तरफ उसका स्लोप है. यहां पे है ना, ये ऊपर का पार्ट होगा, वो इस तरफ स्लोप है, मतलब ये ऐसे है. ठीक है, ऐसे उस तरफ स्लोप है. और सदर्न हाफ ऑफ द डेजर्ट इज हैविंग स्लोप साउदर्न साइड, इस तरफ नीचे की तरफ. मतलब ऐसे, यहां पे अगर रिवर आ रही है तो ये नीचे की तरफ इधर आएगी. तो यहां की रिवर जो है लूनी रिवर, वो यहां फ्लो करती है नीचे की तरफ. ठीक है,
southern slope है, and you can see that the rivers here, like for example Luni river, ठीक है. रिवर्स क्या होते हैं यहाँ के? रिवर्स आर सीजनल रिवर्स, या इनको बोलते हैं एफर्मल रिवर्स. एफर्मल मतलब क्या होता है? दे आर ड्राइंग अप बिफोर ड्रेनिंग इनटू सी. दे आर ड्राइंग अप बिफोर ड्रेनिंग इनटू सी. उनको एफर्मल बोलता है. सीजनल स्ट्रीम्स होता है. पानी ही नहीं गिर रहा है तो रिवर्स कहां से आएंगे? मेजर रिवर इज लूनी रिवर. एंड दीज रिवर्स, एज दे आर एफर्मल, हियर सॉल्ट प्रोडक्शन थ्रू इवेपोरेशन, ठीक है. तो इवेपोरेशन इन प्लाया लेक्स. व्हाट आर प्लाया लेक्स? Playa lakes shows inland drainage. Best example is सांबर लेक. लोकेट करो सांबर लेक राजस्थान में. इनलैंड ड्रेनेज. मतलब ये है कि ये ओशंस तक पहुंचती ही नहीं है स्ट्रीम्स. ये आके ये लेक में जाके वहीं पे खत्म हो जाती है. तो ये पानी जो भी ला रही है वो कहाँ पे ला रही है? लेक में. वहां ड्रेन हो रही है वो. उनको प्लाया लेक्स बोलते हैं. सांबर लेक. देयर आर मेनी सच लेक्स इन राजस्थान जो सॉल्ट प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं. सॉल्ट प्रोडक्शन. तो 2 साल पहले प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आया था, दिदवाना और ऐसे कुछ तो नाम लिखे थे, आर, ठीक है. वो नाम लिखे थे लेक्स के और आर लिखा था नीचे. फ्रेश वाटर लेक्स, सलाइन वाटर लेक्स, वेटलैंड्स, इस तरीके से वो ऑप्शंस दिए थे. तो वो सॉल्ट वाटर लेक्स ऑफ राजस्थान है, ठीक है. बट उसमें सांबर लेक नहीं लिखा था. ऑफ कोर्स सबको समझ में आ जाता. बचपन से पढ़ते आ रहे. हाँ, देवभर है. दिदवाना लेक इज देयर. यू मे फाइंड सम लेक्स राजस्थान. इसमें दिया नहीं होगा ठीक से, क्या पता. सांबर लेक ही दिया हुआ है, बाकी के लेक्स नहीं दिए हुए हैं. छोटे छोटे लेक्स है जो सॉल्ट वाटर लेक है, सलाइन वाटर और सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है. ऑल राइट. डेजर्ट हो गया है. यू शुड नो दैट डेजर्ट इज फॉर्म ऑन पेनिनसुलर ब्लॉक. डेजर्ट इज नॉट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. थार डेजर्ट ही है ये. मरुस्थली मतलब थार डेजर्ट, ठीक है. नहीं. हाँ, ऑफ कोर्स पेनिनसुलर का ही पार्ट है. पूरा राजस्थान, गुजरात, सारा चीज. बिल्कुल, मध्य प्रदेश, ठीक है. So what I was telling you that desert is formed on peninsular block, ठीक है. वो डेजर्ट के नीचे जो है ना, पेनिनसुलर का बेस है. तो नीचे क्या हो गए? रॉक्स हो गए पेनिनसुला के, ठीक है. ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन डेजर्ट इज फॉर्म ऑन द सरफेस, ठीक है. फाइन. Next is coastal plains. Coastal plains. This year's question in mains examination, the resource potential of coastal areas of India, and second part of that question was the
नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस ऑफ दिस कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर बेसिकली वी कैन डिवाइड देम एज वेस्टर्न प्लेन्स एंड ईस्टर्न प्लेन्स, और डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, डिफरेंशिएशन वाला भी क्वेश्चन आ सकता है प्री में, मेंस में। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू submergence. I had explained you western part of, let's say, Indian plateau, or we can say peninsula, has submerged. सर जो वेस्टर्न घाट है, जो मेरे को ना जो प्लेट्यू है, जो वेस्टर्न घाट और जो ईस्टर्न घाट है, वो प्लेट्यू का पार्ट है ना, तो प्लेन्स जो उसके जो और जो वेस्ट साइड में है उसको प्लेन्स कंसीडर करेंगे ना, जो जहाँ पे ओरोग्राफिक प्लेन होता है वेस्टर्न घाट पे। देखो मैं आपको एक परमानेंट एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, तो आपको फिक्स याद भी रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, समझो बहुत साल पहले पेनिनसुलर ब्लॉक जो होगा वो इस तरीके से होगा, बहुत साल पहले। ठीक है, अब क्या हुआ होगा कि यहां का पार्ट जो है ना, ये इतना टूट के नीचे चला गया थोड़ा सा। ठीक है, ये तो क्या हुआ है, समझो पानी जो है यहां तक ही है। ठीक है, अब ये टूट के नीचे चला गया है तो पानी यहां तक पहुंच गया। तो ये वेस्टर्न घाट से एग्जैक्टली वेस्ट में इधर पानी दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, तो ये क्या है, सबमर्जेंस होने की वजह से। अब इस साइड में क्या हुआ है कि ये जो पार्ट है थोड़ा ऊपर चला गया है, मतलब ये आज कैसे दिख रहा है। तो पहले क्या होगा, पानी ऐसे दिखता होगा। ठीक है, तो अब ये पानी जो है मतलब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ अभी अंदर तक पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एमर्जेंट और सबमर्जेंट कोस्ट इसको बोलते हैं। अब क्लियर है? हाँ, ड्यू टू सबमर्जेंस एंड ड्यू टू एमर्जेंस। ठीक है, यहां पर अभी देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो, कंपैरेटिवली दे आर नैरो, दे आर वाइडर, more erosional features, more erosional landforms, more depositional landforms. Rivers form estuaries, formation of deltas by rivers. डिफरेंशिएट आता है तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। सम मोर स्पेसिफिक पॉइंट्स टू वेस्टर्न प्लेन्स, डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे वो। वेस्टर्न प्लेन्स नैरो एट सेंटर and wider at north and southern side. नैरो एट सेंटर, तो कर्नाटका कोस्ट देखोगे तो आपको ऐसे वॉल लाइक वेस्टर्न घाट्स है और डायरेक्ट ओशन है। ओशन इज डायरेक्टली हिटिंग और ओशन वेव्स आर डायरेक्टली हिटिंग द वेस्टर्न घाट्स। कर्नाटका में, गोवा में, गोवा के बीचेस नहीं, गोवा के सदर्न साइड में देखोगे तो वो ऐसा ही है। ठीक है, एंड देन इन महाराष्ट्र, गुजरात, सो वाइडर, एंड इन लगे नीचे देखते हैं अगर तो केरला, ओके, सो वाइडर अगेन यूनिक फीचर ऑफ केरला कोस्ट। तो इनके नाम अलग अलग, कोस्ट के नाम अलग अलग है कि नहीं रीजन में। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलते हैं, गुजरात में कौन सा कोस्ट बोलते हैं हम इसको,
कौन सा कोस्ट बोलते हैं हम? पोरबंदर हाँ, कोस्ट कोस्ट पोरबंदर कोस्ट नहीं नहीं, रीजनल नेम क्या है? जैसे महाराष्ट्र और गोवा में हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं, ठीक है, या फिर कर्नाटका और केरला में मालाबार कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, गोयलवाड़ काठियावाड़ होगा। नहीं नहीं, वो अलग है। हाँ ठीक है, वो तो लोकल नाम है वहाँ का, ठीक है। पोरबंदर कोस्ट, गोलवार कोस्ट, ये तो लोकल नाम है यहाँ पे। गुजरात कोस्ट, मालाबार जो है वो कर्नाटका और केरला में बोलते हैं। कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराष्ट्र और गोवा में। ठीक है, गुजरात कोस्ट को गुजरात कोस्ट ही बोलते हैं आई गेस, ठीक है। बट इधर देखिए ईस्टर्न कोस्ट में अलग अलग नाम है। कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में बोलते हैं। देन आंध्रा कोस्ट को क्या बोलते हैं हम? ठीक है, आंध्रा कोस्ट को कुछ नहीं बोलते। उड़ीसा को क्या बोलते हैं? उत्कल कोस्ट। नेशनल एंथम में भी है ना उत्कल, द्राविड़ उत्कल बंगा, है ना? हाँ, तो वो है उत्कल। वेस्ट बंगाल का तो वेस्ट बंगाल का बंगाल, ठीक है, उसमें कोई अलग नाम नहीं है, रीजनल नाम है उनके। नाउ नॉर्दर्न सरकार शायद बोलता है आंध्रा में। हाँ, नदन सरकार्स बोलते हैं आंध्रा में। सरकार्स जो नाम है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने ये। हाँ, हिस्ट्री में भी ये नाम यूज किया जाता है बहुत बार, नदन सरकार्स जो होता है आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा, दैट रीजन, कोस्टल आंध्रा, रायलसीमा नहीं, कोस्टल आंध्रा, ठीक है। ईस्टर्न प्लेन्स का और क्या क्या फीचर्स है? वाइडर है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे दे आर फर्टाइल प्लेन्स, so that's why rice cultivation is prominent. फर्टाइल प्लेन्स है, राइस कल्टीवेशन, डेल्टा फॉर्मेशन है, ठीक है, मैनग्रूव्स है। ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा मैनग्रूव्स दिखाई देंगे डेल्टा फॉर्मेशंस के यहाँ पर। और क्या क्या है ईस्टर्न? ईस्टर्न में, ये सारा ईस्टर्न में है क्योंकि ये फर्टाइल प्लेन्स है, वाइडर है। और क्या लिख सकते? हाँ, हाँ, तो वो तो है ही। हम लिख सकते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे क्या है, ऑलिव रिडले टर्टल्स का नेस्टिंग ग्राउंड्स है, ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल्स। And migratory birds are also coming in this area. यस, हम उसको लगून लेक्स बोलेंगे। लगून लेक्स, लाइक चिलिका लेक, पुलिकत लेक। यहाँ पर एक खास चीज क्या है मालाबार कोस्ट की, खास करके बैक वाटर्स ऑफ केरला, उनको कयाल्स बोलते हैं, कयाल्स। एवरी ईयर देयर इज बोट रेस, नेहरू बोट रेस बोलते हैं इसको, कयाल्स में, बैक वाटर्स में फेमस है। बैक वाटर्स मतलब
Simply the sea water is entering into the let's say land area. I wouldn't say कि वो streams वाले एरिया में आ रहा है, ठीक है. ये क्या कर रहा है, सी वाटर जो है वहां पे कोस्ट जो है हमारा ना कोस्ट एरिया जो है ना वो ऐसा इस तरीके से होता है जहां पर ये पानी अंदर की तरफ आ जाता है इस तरीके से, ठीक है. लो लाइंग एरिया होने की वजह से, लो लाइंग एरिया होने की वजह से पानी अंदर आ जाता है. ओके, तो उनको बैक वाटर्स बोलते हैं, ठीक है. तो दीज आर नॉट इस्चुरीज, ठीक है. इस्चुरीज नहीं है जहां पे वो रिवर वाटर, रिवर के बैंक में, रिवर चैनल में वो पानी अंदर आ रहा है. इस्चुरीज में ओशन वाटर, यहाँ पे वो रिवर नहीं है. रादर the land itself is low lying land, that's why the ocean water is trying to enter into land whenever there is possibility, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे बैक वाटर्स बने हुए हैं वहां पर, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट. इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट वेरी फेमस इन केरला, ठीक है. और वहां पे वो बोट्स भी फेमस है ना टूरिस्ट के लिए, हनीमून के लिए जाते हैं लोग, वहां पे बोट पे रहते हैं. ये बैक वाटर्स का ही है वो फेमस, ठीक है. यहाँ का ही है ये बैक वाटर्स, कयाल्स. हाँ, यस. सो व्हाट आर द रिसोर्सेस? चलिए वो क्वेश्चन का आंसर करते हैं लगे इमीडिएटली. हाँ, वी कैन से दैट वर्षा, यस, कच्छ कोस्ट और काठियावाड़ कोस्ट इन गुजरात. लार्जली इट इज काठियावाड़ कोस्ट, गुजरात का जो है काठियावाड़ पेनिनसुला का. ओके, क्या है रिसोर्सेस बताओ. पूरे कोस्टल एरियाज के रिसोर्सेस क्या क्या है इंडिया के? रिसोर्सेस ऑफ कोस्टल एरियाज. As this question was asked this year, we are discussing this. साथ साथ में इसका आंसर मिल जाएगा. बताओ. First talk about natural resources. हाँ, ठीक है. पहले देखो, कभी भी आंसर लिखते हैं ना तो स्ट्रक्चराइज करने का उसको. मैंने बताया था ना रिसोर्सेस कैसे लिखने का. ठीक है. मिनरल्स में थोरियम आएगा. सैंड इटसेल्फ इज अ मिनरल. सॉल्ट, सॉल्ट प्रोडक्शन. और क्या है मिनरल्स में? ठीक है. एनर्जी रिसोर्सेस, कोस्टल रीजन्स. सो इसमें यही लिख दीजिए ना, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ऑफशोर, है ना. बॉम्बे हाई नेचुरल गैस के लिए केजी बेसिन यू कैन मेंशन. एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओटेक एंड, और एक क्या बोला था हमने जब ओशनोग्राफी पढ़ रहे थे? वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, और एक था ना, विंड एनर्जी. हाँ, ऑफशोर विंड एनर्जी. यस, हर एक का एग्जांपल देते हुए चलना है. ऑफशोर विंड एनर्जी तमिलनाडु,
Gujarat, potential. Lakshadweep, recently we had set up the plant, OTEC plant. Tidal energy, huge potential in Gulf of Kutch. We have already set up the plant in West Bengal, Durgadani. ठीक है, वेव का पोटेंशियल है बट इतना कमर्शियली वायबल नहीं होता है वेव का. टूरिज्म रिक्रिएशन बेस्ट है, बीचेस के नाम दो. गोवा टूरिज्म के लिए, पौंडीचेरी. ठीक है. देन टूरिस्ट प्लेसेस आर देयर. ठीक है, गोवा के यहाँ पे. देन कल्चरल प्लेसेस आर ऑल्सो देयर. कौन से कल्चरल में? महाबलीपुरम along the eastern coast. गंगा सागर. क्या है गंगा सागर? वेस्ट बंगाल में एक आइलैंड है ना जहां पर बहुत बड़ा एक मेला लगता है. कब लगता है? जनवरी में होता है. ठीक है, जब उत्तरायण शुरू होता है उस टाइम पे होता है ये गंगा मेला, गंगा सागर के यहाँ पे. कल्चरल. देन जगन्नाथपुरी, पुरी टेम्पल्स कहाँ पर है? कोस्ट पे ही है ना, भुवनेश्वर. ठीक है, पुरी टेम्पल्स. कल्चरल एस्पेक्ट इज ऑल्सो देयर. बायोडाइवर्सिटी, वो ऑलिव रिडले टर्टल दिखिए यहाँ पे. रिसोर्स है ये. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज अ रिसोर्स. सो मास नेस्टिंग फेनोमेनॉन, हरिबाड़ा, मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स. कहां पर है ये? ओडिशा कोस्ट. फ्लोरा, मैनग्रोव्स, very important resource. It acts as a shock absorber, we can say, for storms, cyclones, tsunamis. Basically it is a natural resource. हो गया आंसर. आधा आंसर यही था आपका क्वेश्चन वो जो था. ठीक है ना. अब स्टूडेंट ने आधा भी लिखा होगा इसका तो भी ठीक है, इतनी सारी चीजें याद तो आएगी नहीं वहां बैठ के. सर हेडिंग्स के अंदर क्या? हेडिंग्स सर आंसर्स में जो भी हेडिंग लिखी है उनके अंदर एक्सप्लेन करके या फिर डायरेक्टली एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हैं. नहीं, एक लाइन लिखने की एग्जांपल लिखने का, एक लाइन लिखने की एग्जांपल लिखने का, ये हैबिट डालनी है हमें GS 1 2 3 के. लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पे अभी रिसेंटली एक प्लांट डाला है हमने, ओटेक. हमने करंट के एग्जांपल दिए, हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश जो है एग्जांपल दिए, हमने पोटेंशियल दिया है, ऑफशोर विंड पोटेंशियल है, टाइडल विंड, टाइडल एनर्जी पोटेंशियल है. तो ठीक है, समझो स्टूडेंट्स जो है ये सब लिखता है बट ये हेडिंग नहीं देता है. समझो ऐसे 8-10 पॉइंट लिखता है, समझो A 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा स्टूडेंट ऐसे डिवाइड करके सब हेडिंग लेके लिखता है. कौन सा अच्छा दिखेगा? इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चर स्टूडेंट को. नहीं तो फिर जो भी थॉट आ रहा है माइंड में वो लिखते जाना, जो ऑर्गेनाइज नहीं होता है. तो हाफ मार्क का डिफरेंस जरूर करता है ये, मिनिमम हाफ मार्क. दिखने में जो बोलते हैं ना प्लेजेंटनेस एंड द वे यू आर यू नो एज अ पर्सन, ये रिफ्लेक्ट करता है. आपके थॉट जो है ना आपके ऑर्गेनाइज्ड है, ये वाली चीज रिफ्लेक्ट करता है आंसर में. तो उनको कौन चाहिए? IAS लोग कौन चाहिए? नी जर्क एक्शन लेने वाले नहीं चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड है ना. तो आपकी खुद की एक हैबिट होनी चाहिए कि आप खुद एक पर्सन ही ऑर्गेनाइज्ड है. मतलब घर पे आप रह रहे हो जहां जिस रूम में, तो आप सब चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में रखनी चाहिए. यहां से ही शुरू होना चाहिए हर चीज. आपका टेबल एकदम ऑर्गेनाइज होना चाहिए, रूम, कबर्ड, सब चीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स यहाँ पे ओल्ड आ जाएगा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी में भी रिफ्लेक्ट करता है. ओके फाइन.
तो ये हो गया आपका। तो आपका क्या टास्क है अभी, राइट डाउन नोट, ये आपका जो क्वेश्चंस जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चंस, रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ, ठीक है, रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ, उसमें फर्स्ट हिमालयस, सेकंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स का हमारा हो गया है अभी, है ना। तो लिखे आइलैंड टेरिटरीज, आइलैंड टेरिटरीज, देन डेजर्ट रीजन। सर रिसोर्स कहाँ होगा उधर, होता है क्या रिसोर्स डेजर्ट में? ऑफ कोर्स होता है। क्या है? विंड एनर्जी में also। ठीक है, विंड एनर्जी ही है, वो मोस्ट विजिबल है। और सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, और टूरिज्म भी है। टूरिज्म भी है, बिल्कुल है। और मेटल्स, सर पहले है से कॉपर, 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 टंगस्टन, टिन एंड इवन क्रूड ऑयल, बारमेर, क्रूड ऑयल, ठीक है, बारमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। तो है, सब कुछ है, रिसोर्सेस है, सब है। एंड देन बायोडायवर्सिटी ऑल्सो, डेजर्ट नेशनल पार्क, ग्रेट डेजर्ट नेशनल पार्क, क्या मिलता है वहां पे? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। तो बारमेर में क्या बताया आपने? क्रूड ऑयल, हाँ, क्रूड ऑयल रिजर्व्स है बारमेर में, ठीक है। तो ऐसा अभी लग सकता है हमें सरफेस पे कि क्या रिसोर्सेज है, बट देयर आर रिसोर्सेज, बट रिमेंबर दीज हेडिंग्स, सब रीजन्स के लिए आपको ये हेडिंग्स के अंदर ही मिलेगा जो मिलना है वो। अब माइंड में आ गया फिक्स कि रिसोर्स मतलब क्या होता है। और इससे इजी भी हो जाएगा, अब आउटपुट में क्या होगा, क्या हो सकता है, बायो Yes. क्या होगा। ऐसे ही तो याद रखना है। अब इसमें मैंने लिखा नहीं है फूड एंड न्यूट्रिशन में, आपको पता है फिश एंड ऑल, तो वही है चीज, उसमें वही लिखना है। चलिए ये आप अभी खुद से लिखिए, ये इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, बिकॉज लास्ट ईयर दे आस्क्ड डेक्कन ट्रैप्स, दिस ईयर दे आस्क्ड कोस्टल रीजन्स, ठीक है। तो आपको वो आगे बाकी के रीजन्स भी कवर कर लेने चाहिए ठीक से। नॉर्थ ईस्टर्न रिसोर्स ही रिसोर्स है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो फाइन। लास्टली आइलैंड टेरिटरीज, there are two groups of islands, one in Arabian Sea, one in Bay of Bengal, ठीक है। Lakshadweep group of islands and Andaman and Nicobar group of islands, ठीक है। Origin we talked about that, largely these are corals, coral in origin, these are submarine mountain ranges and some of them are volcanic in origin, some of them are volcanic in origin, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार, फर्स्ट विल टॉक अबाउट लक्षद्वीप। ओपन योर मैप, ठीक है। लक्षद्वीप में देखिए वहां पर वी कैन डिवाइड देम इन टू ग्रुप्स, वन इज मिनिकॉय आइलैंड, ये सदर्न साइड में है, और नदर्न साइड में क्या है, रिची आर्चिपेलागो, नॉर्थ में जो आइलैंड्स है, देयर आर टोटल 36 आइलैंड्स, आउट ऑफ देम 11 आर इनहेबिटेड,
11 आर इनहेबिटेड, बाकी के इनहेबिटेड नहीं है। ठीक है, आइलैंड का देखना एक बार, राइट। लक्षद्वीप आइलैंड्स, 9 डिग्री चैनल डिवाइड्स नदर्न एंड सदर्न। ठीक है, सदर्न में मिनिकॉय आइलैंड है और नॉर्थ में बाकी के आइलैंड्स जो है अमीन दीवी, कैननोर आइलैंड्स, करावती इज द कैपिटल। नाइन डिग्री चैनल। एट डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स। नीचे जो है उसके मिनिकॉय के नीचे 8 डिग्री चैनल दिखाई देगा, सेपरेट्स फ्रॉम मालदीव्स। ठीक है, यहां पर आपको यह पता होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज मुस्लिम पॉपुलेशन। ठीक है, यहां पर क्या है, कोकोनट प्लांटेशन एंड डिपेंडेंट इंडस्ट्री लाइक क्वायर इंडस्ट्री। कोकोनट पे ऊपर डिपेंडेंट इंडस्ट्री क्वायर इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री, क्वायर इंडस्ट्री। सो दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। फिशिंग इज ऑफ कोर्स देयर। ठीक है, कोकोनट प्लांटेशंस। सेकेंड इज अंडमान एंड निकोबार। क्वायर, क्वायर ये होता है ना झाड़ू, पाय पुसनी जो होता है वो, उसको क्वायर बोलते हैं ना, कि वो कोकोनट के इसके ऊपर का जो बनाया था ना हार्ड कवर, उससे बनाया रहता है ना, उसको क्वायर इंडस्ट्री बोलते हैं, क्वायर से बना हुआ प्रोडक्ट्स। Andaman and Nicobar group of islands. So here we know that there are indigenous tribes. They are highly endangered, we can say, tribes, primitive tribes we can say. Like we have Jarawas, Sentinels, Ongs, अंडमानीज। आजकल मैं वो देख रहा था काला पानी, ओराकस। वो ओराकस नहीं है, वो उसमें नाम दिया है उसमें सिर्फ। ठीक है, हाँ फिक्शनल है, वो पूरा ही फिक्शनल है आपको सारा। हाँ, ट्रू स्टोरी पे थोड़ी है वो। लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड ही है वो। 9 डिग्री मीन्स 9 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, उसको चैनल ऐसे ही नाम दिया है क्योंकि वो वाटर चैनल की तरह एक्ट करता है ना, दो इसके बीच में से जा रहा है ना। हाँ, यस, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड नियर स्टेट ऑफ मलाक्का। देखिए स्टेट ऑफ मलाक्का के यहाँ पे, यू शुड नो दैट दीज आर कंपैरेटिवली नियरर टू कोलकाता एज कंपेयर टू तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार कहाँ से नजदीक है, कोलकाता से। वहां से शिप जाएगी तो वो जल्दी पहुंचेगी, कोलकाता से शिप्स ज्यादा जाते हैं वहां पर एज कंपेयर टू वी कैन से तमिलनाडु कोस्ट। हाँ, 10 डिग्री चैनल separates Andaman and Nicobar group. Andamans are further divided as North Andaman, Middle Andaman, South Andaman and Little Andaman.
नहीं, 10 डिग्री चैनल याद रखना है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो दैट वी हैव इन इंडिया। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड में है। शायद ये एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, बैरन आइलैंड जो है निकोबार आइलैंड्स में लिखा हुआ है। करते हैं वो भी, गलती करते हैं, इंसान ही है वो भी। और वो गलती अपडेट भी नहीं करते जल्दी, बताना पड़ता है, कोई तो मेल लिखे फिर उसके बाद वो अगले एडिशन में शायद करे। आइलैंड्स ये देखिए, बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज आल्सो सिचुएटेड इन निकोबार आइलैंड्स लिखा है, गलत है वो। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में देखो, वहां पे कहां पर है वो? ठीक है। और ऊपर सबसे ऊपर देखो, नारकोंडम आइलैंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो, उसको डॉर्मेंट भी बोलते हैं, डॉर्मेंट भी बोलते हैं उसको, नारकोंडम। डॉर्मेंट मतलब क्या बताया था मैंने? देयर इज पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर दैट इट विल इरप्ट। ठीक है, बाकी मैपिंग में देखते हैं हम डंकन पैसेज और वो सब जो है। नाउ biodiversity, very important. Why? Because it is located near equator, highly biodiverse regions. ठीक है, it is also part of, we can say, the biodiversity hotspot Nicobar Islands. Nicobar Islands are part of biodiversity hotspot Sundaland. यहां पर आपको पता होना चाहिए 9 नेशनल पार्क्स है टोटल, 9 नेशनल पार्क्स, 1 बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। Largely here fish, rice, कोकोनट खाने में, और एग्रीकल्चर का पार्ट जो है यही है। हमारा एक इंपॉर्टेंट ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है यहाँ पर। ट्राई सर्विस मतलब तीनों सर्विसेज का यहाँ पे बेस है अंडमान में, ठीक है। रिसेंटली वन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च इन निकोबार, ठीक है। तो वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट दिस, वी कैन से ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, गलाथिया बे नेशनल पार्क इज देयर, so they are going to get impacted because of this infrastructure project. Many endemic species are there. एक बार एक कोकोनट का यूनिक स्पेसीज यहाँ पे डिस्कवर हुआ, यूपीसी ने प्रीलिम्स में पूछा। तो न्यूज में अगर अंडमान निकोबार पे कोई नया स्पेसीज का डिस्कवरी होता है तो वो हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंडरस्टूड? अंडमान निकोबार